प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने दिया है कि आज फिर से एक बार हम बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। इन दिनों में जो हमारा विषय है वो है गलतियों की पत्री, और अभी तक हमने पहले अध्याय के कुछ बातों पर ध्यान दिया। आज हम उससे आगे देखेंगे। आज हमारा पाठ है पहला अध्याय, उसका 18 पद से आगे। अब मैं चाहूँगा कि हम इन पर ध्यान दें, गौर करें और उन बातों को देखें जो प्रभु हमसे आज बात करना चाहते हैं। डियर फ्रेंड, टुडे वी once again continue our Bible study from the book of Galatians chapter 1, and we'll study from verse 18 today. But let's pray as we start the Bible study. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, कि आज भी हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान कर सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं, ताकि प्रभु आपकी इच्छा को जाने और आपकी महिमा कर सकें। आज के बाइबल अध्ययन पर आपके आशीष हो। आप हमारे मनों को तैयार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हमने पिछले दिनों देखा था किस प्रकार से संत पौलुस सुसमाचार के बारे में, बुलाहट के बारे में बातों को स्पष्ट करते हैं और ख़ास करके अपने बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने उसको चुना। अगर आप पहले अध्याय के 11 पद में देखें तो कहता है, भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का आशा नहीं। He says to his readers, the listeners, 11th verse of chapter 1, for I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. Now here St. Paul makes a clear indication that the gospel he is preaching is not of the creation of his mind. And it is quite visible here that he says very clearly, categorically, and with all sincerity, that this gospel was in accordance with the revelation of Jesus Christ. And he says here, verse 2, for I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Lord Jesus Christ. And I have given you enough reason in our last studies what is the revelation of God. And also I quoted few verses from the book of Revelation where he says to John, the disciple, and he said this is the revelation of Jesus Christ. The revelation means he is revealing his secrets. He is revealing his plans to human being, especially the church. And therefore here Paul is very clear about his testimony that everything he is preaching pertaining to the gospel of Jesus Christ is in accordance with the revelation of Jesus Christ. And therefore it has three important things. Number one, this is from heaven. This is from heaven. This is not the creation of human being or its mind or his or her mind. This is from heaven. Number two, it is for the good, for the redemption of human being. ये मनुष्य के छुटकारे के लिए है, उसके उद्धार के लिए है। और तीसरी बात है, this is eternal. This is eternal truth. This truth is the truth now, it was, it is, it will be. Because this is the revelation of Most High God, who is holy, who is almighty, and therefore his all words are holy and trustworthy and dependable. Because he himself said, यीशु ने खुद कहा था एक बार कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। और इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि तमाम बातें जो दुनिया की हैं वो समाप्त हो सकती हैं, टल सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह की बातें हैं वो कभी नहीं टलेंगी, वो अनंत काल की बातें हैं। Now with this understanding we come for today's study now, and what I want to say to you today. He talks about certain things about his own life. Verse 18 of chapter 1,
फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके बाद उसके पास 15 दिन तक रहा. Now he says here about his 3 years of isolation in Arab. And he says here in 17th verse very clearly about his voice to Arab. He said, if you read here, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia and returned again to Damascus. Now historian says that he was there for 3 years, and he has written even here also in this book that he was there for almost 3 years, spent time with the Lord, knowing his nature, knowing his word, and he might have fasted there because he was a disciplined person. संत पॉल ने वहाँ उपवास करा होगा इन 3 सालों में, और उपवास के द्वारा उसने परमेश्वर की बातों को जाना होगा, परमेश्वर की योजनाओं को जाना होगा. तो यहाँ पर जब वो आ गया तो कहता है कि मैं 3 वर्ष के बाद जब मैं लौटा अरब के जंगल से, अरब के रेगिस्तानों से जहाँ पर मैं रहा, it was an intentional taking off from the crowd, intentional deciding to be with the Lord. Of course it is in the will of the Lord that he should be with him in isolation, in the place where nobody will disturb him, nobody will stop him from spending time with the Lord. And this is very, very important. I remember many years ago when I was the youth director, many years ago, almost 30 years ago, and I used to have this youth camp in Christian Study and Retreat Center, Dehradun. And we had our seminar there, Himalayan, whatever the program we had, Odyssey we had, and lectures we had. And then after this program was over, I will discuss with the director, and even though it was not appropriate that they didn't allow, but he allowed me. So I spent about 1 more day alone in that campus with the Lord. And he said, okay John, you can do that because I think that you need some alone time with the Lord. And then also when I was the Acharya, resident Acharya of Sathal Christian Ashram for 5 years, I had ample time to spend time with the Lord. In the chapel, in the lakeside, even though it was not safe, and sometimes also I was asked by the people not to go alone there because the tigers came, leopards came. But nothing came during my time, at least in the daytime when I was in the morning time. So I could spend a good amount of time in the chapel sitting alone with the Lord, and then in the lakeside chapel sitting alone with the Lord. And today I feel how beneficial time it was. मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं जब सातताल आश्रम में था, वहाँ के रेसिडेंट आचार्य के रूप में, तो मैं समय निकालता था अकेले में चैपल के अंदर और झील के किनारे चैपल के अंदर बैठा रहता था. एंड देन आई विल सी दी नेचर एंड गॉड विल स्पीक टू मी. मैं प्रकृति को देखता था, परमेश्वर मुझसे बातचीत करता था. ठीक इसी प्रकार से कुछ संत पौलुस के साथ हुआ जब वो 3 साल तक उस अरब के रेगिस्तान में रहे और प्रभु ने उनसे बातचीत करी. और जो कुछ हम आज देखते हैं, इन दिनों में देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे, रोमियो के पत्री में और कुरिन्थ की 2 पत्रियों में और उसकी साधारण 4 पत्रियों में, यानी गलतियों की पत्री, इफिसियों की पत्री और फिलिपियों और कुलुसियों के अंदर और बाकी और पत्रियों में, तो हम इस बात को देखेंगे कि वो प्रकाशन जो परमेश्वर ने पौलुस को दिया उस समय अभी उसका बखान कर रहे हैं. 3 साल की बातों का बखान, हालांकि इसके बाद भी वो चलते रहे प्रभु के साथ और मिशनरी यात्राएं करी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा और सिखाया. लेकिन जो मुख्य समय था उनके लिए वो 3 साल का समय था जब वो अपने आप को उसने अलग कर लिया समाज से, बाकी तमाम बातों से प्रभु के साथ वो रहे. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया
और उसके पास 15 दिन तक रहा। अब पौलुस अब यरूशलेम में आए, जहाँ कैफा यानी पतरस रहते थे, और पतरस से उन्होंने भेंट करी और पतरस से उन्होंने अपने आत्मिक बातों को शेयर करा होगा। पतरस के सामने उन्होंने अपने उन बातों को शेयर करा होगा जो प्रभु ने उनसे बातचीत करी थी 3 साल के दौरान अरब के रेगिस्तान में। पौलुस इस बात को जानता था कि जो सुसमाचार उसको दिया गया है वो सचमुच में परमेश्वर का प्रकाश है, यीशु मसीह का प्रकाश है। इसलिए वो इस बात पर गर्व भी करते थे और वो दीनता के साथ गर्व करते थे कि प्रभु ने मुझे से व्यक्ति को चुन लिया जो कुछ भी नहीं था और उसने मुझसे बातचीत करी। तो यहाँ पर वो अपने बारे में बताता है कि 3 साल के बाद वो जब आया वहाँ से अरब से, तो वो यरूशलेम को चला गया ताकि आत्मिक या आध्यात्मिक परिचर्चा वो प्रभु के संत, प्रभु के चेले, प्रभु के शिष्य पतरस के साथ कर सके। दूसरी बात यहाँ लिखा है, पर यहाँ पर हम पहले देख, दूसरी बात के पहले एक और बात यहाँ लिखा है, पहले बात में ही 19 पद में लिखा है, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरित में से किसी से ना मिला। पतरस के साथ तो रहे, लेकिन बाकी और चेले वहाँ पर थे या नहीं थे, लेकिन केवल वो प्रभु के भाई याकूब से मिले जो वहाँ यरूशलेम में रहते थे। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि झूठ नहीं। अब पौलुस अपने बारे में कहता है कि जो बातें लिख रहे हैं और जो आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे, वो सारी बातें सत्य हैं। उस बात में कोई सी बात नहीं है जो हमारे लिए शक उत्पन्न करे। ये वो सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, सारी सैद्धांतिक बातें हैं कलीसिया के बारे में, जिसको प्रभु ने उसको सिखाया। आरा जो प्रभु के आज्ञा के अनुकूल उन बातों को सुन रहा है और दूसरों को सिखाना चाहता है। दूसरी बात यह लिखा है, इसके बाद में सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में गया। निश्चित रूप से पौलुस के मिशनरी यात्रा के बारे में, क्योंकि इन यात्राओं के दौरान ये इन स्थानों में गया, इन प्रांतों में गया। कहाँ गया वो? सीरिया के प्रांत में। आपको याद है, सीरिया के अंदर जब गया तो वहाँ भी वो प्रचार करता था, और पिसिदिया के अंदर गया, वहाँ भी प्रचार करता था, जाके अंताकिया में गया और बाकी शहरों में गया। फिर वो कहता है कि मैं किलिकिया के प्रांतों में गया। तो इन दोनों प्रांतों में जब वो गया तो ये निश्चित रूप से उसकी मिशनरी यात्राएं थी, और जिन जगह पर गया उसने प्रभु की महिमा के लिए झुंडों को स्थापित करा, कलीसिया के स्थापित करा। और इसलिए पौलुस उसके बारे में कहता है, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने यीशु मसीह में थी, मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। क्या कहना मांग रहा? ये कहना मारा कि जो यहूदिया के प्रांत के लोग थे, हालांकि वो जानते थे यरूशलेम में ये पला पोसा गया था, लेकिन जब वो प्रभु में आया तो उसने अपने कार्य दमिश्क में करा, उसने फिर सीरिया के अंताकिया में करा और पिसिदिया के अंताकिया में करा और किलिकिया के प्रांत के अलग जगह करा और सीरिया के प्रांतों में करा। लेकिन जो यहूदा का या यहूदिया का क्षेत्र था, वहाँ उसने बहुत कम प्रचार करा कि प्रभु की इच्छा थी कि वो अन्य जातियों में जाए, और उसी का वर्णन वो करते हैं। इसके बाद में सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में गया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। तो पौलुस यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हे गलातिया के विश्वास से मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वो ये है कि मैं क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का, पुनरुत्थित मसीह का प्रचार करूं, जो जी उठा और स्वर्ग को उठा लिया गया और ये प्रतिज्ञा दी कि दोबारा आने वाला है। मैं उसी का प्रचार करता। मेरे प्रचार में और कोई शब्दों का हेरफेर नहीं है, बड़े शब्द नहीं है कि इंसान समझ ना सके। मैं तो सीधे साधे शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि एक ही सुसमाचार जो मुझे बताया गया, जिसके तहत मैं बदल गया। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा हम पाते हैं कि सुसमाचार जो है वो भविष्य के लिए हमें नहीं बदलने के तैयार करता। हाँ, भविष्य की आशा है, लेकिन तत्काल तुरंत
हमारे जीवन के अंदर अगर हमने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया, उसके वचन को सुन लिया, तो उसको ग्रहण करने की और नए जन्म को प्राप्त करने की आवश्यकता। हम केवल ये न कहते जाएं कि वह नया जन्म होना चाहिए, होना तो चाहिए, पर कब होना चाहिए? वचन लिखा ना कि अगर तुम उसका शब्द आज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। मतलब ये कि तुरंत ग्रहण करना, आज ग्रहण करने की आवश्यकता, आज नया जन्म पाने की आवश्यकता, क्योंकि आज उद्धार का दिन है। कल किसने नहीं देखा और कल कभी आता भी नहीं। हम मनुष्य प्राणी आज में जीते हैं। किसने कह दिया कि हम कल जी रहे थे और कल जिएंगे? जी नहीं, ये तो कहने की बात है। हम आज जीते हैं। कल हम जी रहे थे ना, वो कल का आज था, और जो कल जिएंगे वो भविष्य का आज होगा, क्योंकि हमारा जीवन हमेशा वर्तमान में रहता था। अब परमेश्वर इस बात को हमें सिखाना चाहता है, जिस प्रकार से उसने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ, वो सिखाना चाहता है कि हम इस बात को जानें कि हमारा जीवन, हम कभी कभी बहुत से बार भूतकाल के लिए गर्व करते हैं, क्योंकि हमने देखा वो समय। लेकिन क्या आज हम भूतकाल में जी रहे हैं? जी नहीं, हम आज भूतकाल में नहीं जी रहे हैं, हम आज वर्तमान में जी रहे हैं। क्या हम कल जो भविष्य काल हम कल में जिएंगे? नहीं, आज हम जीते हैं। और कल जब हम जाएंगे कल में, तो कल हमारे लिए आज हो जाएगा। असली बाइबल में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जिसको हम जानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, उसके सामने 1000 वर्ष एक दिन के समान है और एक दिन 1000 वर्ष के समान है। तो पौलुस यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करके कहता है कि वो कहता है परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो यीशु मसीह में थी, मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, लेकिन ये सुना करती थी कि जो पहले कलीसिया को सताता था, जो कलीसिया को परेशान करता था, आज उसी का प्रचार कर रहा है। पहले जिस यीशु मसीह के विरुद्ध में कहता था कि कुपंथ है, आज उसी का प्रचार कर रहा है। क्या हो गया जीवन में? प्रभु ने उसको पकड़ लिया। अब प्रभु के संरक्षण में जब वो आ गया, तो उसने इस बात को जान लिया कि ये जो मेरे लिए कल तक एक पहेली थी, मेरे लिए कुपंथ था, मेरे लिए गलत मार्ग था, वही मेरे लिए मार्ग है। मेरी आंखें खुल गई, मैंने अपने आत्मिक आंखों से उसको देख लिया, और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का देने वाला है। अब तीसरी बात हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के पहले पद में। तीसरी बात, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। अब ये 14 साल बाद, निश्चित रूप से पहली मिशनरी यात्रा के बाद, और वो वहाँ इसलिए गया कि वहाँ बरनबास का नाम आया, क्योंकि बरनबास का साथ पौलुस के साथ पहली मिशनरी यात्रा के आखिर तक ही रहा। इसके बाद दोनों में उनके मतों में कुछ भिन्नता आ गई, और बरनबास लिखा है कि यूहन्ना मार्क को लेकर के वो एक अलग जगह चला गया जहाँ का वो था, और वहाँ प्रचार करने के लिए वो चला गया। लेकिन पौलुस और उसके बाकी लोग वो दूसरी मिशनरी यात्रा के लिए आगे चले गए। तो यहाँ पर इस बात को समझना और जानने की आवश्यकता है। पौलुस यहाँ पर 14 वर्ष का वर्णन क्यों करता है? क्योंकि इतिहास है, और मिशनरी यात्रा के बाद, पहली मिशनरी यात्रा के बाद पौलुस अब बरनबास के साथ यरूशलेम को जाता है, ताकि वहाँ के संतों के सामने अपनी सारी बातों को कहे और उनके सामने एक बहुत ही अच्छी गवाही दे कि प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम उनके द्वारा किए। हालांकि इसके बाद जब वापस आए तो इनमें उनके विचारों में फर्क आ गया, और लिखा बरनबास मरकुस को लेकर के, जॉन मार्क को लेकर के साइप्रस को चला गया। ये साफ साफ लिखा है। खैर, चौथी बात लिखा है दूसरे पद में, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जाति में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया,
पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की यह पिछली दौड़ दुर्वैध ठहरे। पौलुस यहाँ पर कहता है कि जब मैं यरूशलेम गया बरनबास के साथ, तो सारी घटना को वर्णन उनके सामने मैंने सिलसिलेवार कर दिया। और वो आगे कहता है कि मैं इन बातों का वर्णन इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा मिशनरी यात्रा में जाना और वहाँ से लौट करके यरूशलेम में जाना परमेश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। न केवल सुसमाचार ईश्वर का प्रकाशन है, पर जो उसके मानने वाले हैं, जो उसको जानते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उनके जीवन की कहानी भी, उनकी जीवन की यात्रा भी परमेश्वर की प्रकाशन के अनुसार है। आप और हम जो आज सेवा कर रहे हैं, चाहे हम पासवान हैं या हम लेटी में हैं या हम किसी भी वर्ग में क्यों ना, या महिलाएं हैं या भाई हैं, क्या कभी हमने रियलाइज करा इस बात को? क्या कभी हमने इस बात को महसूस करा है कि हमारे जीवन का क्रियाकलाप, हमारा उठना बैठना चलना फिरना और खास करके प्रभु की आज्ञा को मान करके सेवा में आना, यह हमारी इच्छा के अनुसार है? जी नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपने अपना जीवन प्रभु को सौंपा है, तो आप उसकी भली भवती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। और उसकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा यह है कि जब तक आपकी सांस चल रही है, आप उसके अगुवाई में चले। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि जब प्रभु हमें कहीं ले जाता है, चाहे पासवान के रूप में, चाहे प्रचारक के रूप में, चाहे किसी और प्रभु की महिमा के कार्य के रूप में, हम प्रभु के द्वारा जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। इसलिए कोई भी अगर इस बात को सोचे कि वो ऐसे ही आ गए, ऐसा नहीं है। प्रभु का सेवक, चाहे रिवाइवल के स्पीकर हो, आत्मजागृति सभा के स्पीकर हो, चाहे वो मिशनरी के रूप में सेवा करने वाले हों या पासवान के रूप में कलीसिया में आकर सेवा करने वाले हों, प्रभु के द्वारा उनका वहाँ होना निश्चित किया जा सकता। और जब तक प्रभु की इच्छा होती वो रहते वहाँ पर, उनको कोई हटा नहीं सकता। हाँ, दुनियावी एतबार से उनके नियुक्ति होती है, सारी बातें होती है, ठीक है, लेकिन अंदरूनी रूप से, आत्मिक रूप से जो उनका जाना होता है, पौलुस कहता है कि मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। और हम इस बात को जानते हैं, हम जो उसकी सेवा के लिए जगह जगह जाते हैं, चाहे वो कोई भी स्थान क्यों ना हो, शहर हो या छोटी जगह हो या कोई और स्थान हो, अगर वहाँ जा रहे हैं सुसमाचार को लेकर के, अगर सुसमाचार के संदर्भ में कोई बात नहीं तो फिर अलग है, वो तो हमारी इच्छा है कि भाई घर का काम यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, समाज का काम कर लो, परिवार का काम कर लो, चर्च का काम कर लो, ये अलग बातें हैं, वो हमारी योजना में होती है। लेकिन जहाँ तक सुसमाचार के प्रचारक के रूप में, एक कलीसिया के पासवान के रूप में या प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए एक पायनियर मिशनरी के रूप में, ये प्रभु के द्वारा भेजा जाना, प्रभु भेजता। इसलिए हमें उसकी इज्जत करनी है, उसके वचन का प्रचार करना है और कभी भी घबराना नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं। तो पौलुस कहता है कि मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा, ये उसकी मिशनरी यात्राएं हैं। उसकी शुरुआत हुई थी अंताकिया में, जहाँ सीरिया का अंताकिया, जहाँ पौलुस और बरनबास के ऊपर हाथ रखे गए सर पर और उनको उस मिशनरी काम के लिए भेजा गया। और लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के भेजे गए अलग अलग जगह में गए, प्रकाशन के अनुसार, परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार। परमेश्वर जो बुलाता है वो योग्य बनाता है और वही भेजता है। गॉड कॉल्स, ही इक्विप्स एंड ही सेंड्स, देयर इज नो डाउट अबाउट। और यह पौलुस कहता है कि मेरी बुलाहट यीशु मसीह के द्वारा, मेरा भेजा जाना प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के अगुवाई के द्वारा, और मेरे द्वारा उस काम को करना उसकी महिमा के लिए, उसके प्रकाशन के अनुसार। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर वो कहता है, और जो सुसमाचार मैं अन्य जाति में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया। अब पौलुस को जब प्रभु ने पकड़ा था, जब वो घोड़े पर चढ़कर जा रहा था अपने दल के साथ, दमिश्क में जा रहा था, तो प्रभु ने उसको पकड़ा और घोड़े पर से गिर गया। उस अनुभव के बाद पौलुस ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करा जो ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है।
वो जहाँ भी गया, जो भी उसने करा, वो परमेश्वर की योजना में करा, उसने उसके प्रकाशन के अनुसार करा, इसलिए प्रभु ने उनको सफलता दी। ये एक दूसरी बात है जो हम यहाँ पर देखते हैं। When you fulfill the will of the Lord, when you go in accordance to His will, you will be successful. You will be successful. Yes, there will be a lot of obstacles, misunderstanding, lot of backbiting, lot of rumors will be there. It is there, bound to be there. Not always, but some places. Many places, in majority places, it never happens, because the people who know that we are in a church, they always listen to the leader, listen to their pastor. But there are certain places where it is not. But in the both places, whether everybody are submitted or submissive, or whether some of them are not, in everywhere, the person who has been sent by the Lord, he is there to unfold the divine purpose and divine word of God. तो पौलुस कहता है कि मेरा भेजा जाना ईश्वर प्रकाशन के अनुसार हुआ, जो मैं सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, उसको मैंने तुम्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। तो वो कहता है कि मैं इस काम के लिए अपने आप को देता हूँ और निरंतर इस प्रयत्न करता हूँ, ताकि जो कुछ सेवा मैं कर रहा हूँ उसका प्रतिफल लोगों को, प्रभु को मिले और लोग आशीष प्राप्त कर सके। 5 बातें लिखा है, 30 पद में लिखा है, परंतु तीतुस को जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, और उस स्वतंत्रता का क्या जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। निश्चित रूप से ये एक ऐसा वर्णन है जहाँ पर पौलुस अपने बारे में कहता है। हम इस बात को देखते हैं कि उसने तीमुथियुस को खतना करा, क्योंकि वो उसके जो पिता थे वो यूनानी थे, माँ यहूदी थी। और कुछ यहाँ पर हम तीतुस के बारे में ये पढ़ते हैं। पौलुस इस बात को जानता था कि ये लड़के जो मेरे साथ आ रहे हैं, ये मेरे साथ हमेशा तक रहेंगे, जब तक मैं इनके साथ रहूँगा, क्योंकि सीनियर थे वो। लेकिन उनके लिए उसने मूसा की व्यवस्था को पूरा करा, क्योंकि वो प्रभु के कार्य के अंदर पौलुस के साथ होते थे। लेकिन जो प्रभु ने शिक्षा दी थी, जिसके बारे में फर्स्ट यरूशलेम काउंसिल में जिस बात पर डिस्कस किया गया, उसके अनुसार 4 बातों को बताया गया कि तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, गला घोटे हुओं के मांस से बचे रहो, लहू से बचे रहो, और व्यभिचार से बचे रहो, और आगे शुभ, आगे तुम्हारा भला। कहने का मतलब यह है कि पौलुस उनको बताना मांगता था कि मूसा की व्यवस्था से बढ़कर हमें आत्मिक रूप से हमारे हृदय के नवीनीकरण की आवश्यकता है। और इसलिए जो निर्णय, जो डिसीजन, जो बात जिस पर यरूशलेम के काउंसिल के अंदर सब एकमत हुए, और जहाँ प्रेरित लोग भी थे और प्रभु के भाई याकूब भी थे, जिनके निर्देशन में ये मीटिंग्स हुई, सभा हुई, उनका निचोड़ ये था कि हम किसी पर मूसा की व्यवस्था के अनुसार दबाव ना डालें, क्योंकि यीशु मसीह में व्यवस्था पूरी होती है। वो हमारा फसा है जो बलिदान हो गया, इसलिए हमें अपने जीवन में पवित्र होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस बात को समझाया गया है कि हालांकि पौलुस की बुलाहट अन्य जातियों के लिए थी और पतरस और बाकी चेले यहूदियों में प्रचार करते थे, पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि ये सारी बातें तो ठीक हैं, इसको हमें याद रखने की आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मूसा की इस व्यवस्था से आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि मसीह के साथ उसकी व्यवस्था को पूरा करते हैं। अब मसीह की व्यवस्था क्या है? सुन इस्राएल, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे तन मन से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रभु मसीह ने उन 10 आज्ञाओं को इन 2 आज्ञाओं में बांट दिया, और ये मसीह की आज्ञा है जो हमें आज़ाद करती है और हमारे जीवन को नया बना देती अंदर से। मूसा की व्यवस्था के कारण लोग उपासना करते थे,
मेलाबल तंबू में जब मंदिर बना था वहाँ, और वो भेंट चढ़ाते थे। सारी बातें हमारे जीवन के ऊपरी बातों को दर्शाते अधिकतर, कि हम किस प्रकार से सेरेमोनियल लॉ के अंदर चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह की जो आज्ञा है वो हमारे हृदय को परिवर्तित करती है। इसलिए जो हृदय को परिवर्तित करती है वही अनंत है, वही स्वर्ग है, और वही हमारे लिए कार्यकारी है। पांचवी बात, चौथा पद, यह उन झूठे नबियों के भाइयों के द्वारा कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, और उस स्वतंत्रता का जो यीशु मसीह में हमें मिलती है भेद लेकर हमें दास बनाया। यही तो उन्होंने बोला ना कि भाई ठीक है, लेकिन जो अन्य जाति से आते हैं उनका खतना होना चाहिए। और बार बार ये बात पौलुस के सामने विरोधाभास के रूप में आई, उसको सामना करना पड़ा यहूदी लोगों के द्वारा, महायाजकों के द्वारा, उनके द्वारा अधिकार प्राप्त लोगों के द्वारा। वो कई बार उसका विरोध करते थे, और पौलुस बार बार उनको यही सिखाता था कि हम या मैं ने प्रभु को देखा है, उसके आज्ञा को माना है, और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, और आखिर तक उसे बना रहा। उसने कभी उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा कि यरूशलेम की काउंसिल को जिनको मानना है मानो, बाकी सबको ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं, ज़रूरत है। और मैं सोचता हूँ कि प्रतिलिपि बार बार जहाँ गए ले गए अपनी दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान, क्योंकि लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते थे कि जो हमारा सुसमाचार है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और स्वतः हमने इसके लिए निर्णय लिया है, और हम चाहते कि हम इसका प्रचार प्रसार निरंतर करते रहें। अब वो पांचवी बात में कहता है, पांचवा पद, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। उनके सामने भी मौका था कि वो समझौता कर ले यहूदी अगुओं के साथ। ठीक है भाई, तुम प्रचार कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हम मानेंगे, और हमारी बातें भी तुम मानो। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्द थे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम मूसा की व्यवस्था से आज़ाद हो जाते हैं। हमारे जीवन पर एक ऐसी व्यवस्था लग जाती, कार्यकारी हो जाती है, जो प्रभु के आत्मा की व्यवस्था, अनंतकालीन व्यवस्था। यह लिखा है पांचवें बात के अंदर, एक घड़ी भर, पांचवा पद, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम्हें बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझ जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अब यहाँ पौलुस यहाँ पर साफ साफ कहता है कि जो ये लोग थे जो हमेशा मूसा की व्यवस्था की तरफदारी करते थे, और कलीसिया के अंदर भी ये आकर मिल गए थे, और जहाँ भी पौलुस प्रचार करता था बाकी चेले प्रचार करते थे, बाद में ये भी बोलने लग जाते थे, तो पौलुस ने कहा कि ये गलत है। हम सब प्रभु के वचन के अनुसार हैं, और उसके वचन के अनुसार ही कार्य करते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, और उसने कहा है तो कहा है सबके लिए बराबर। इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता। छठवीं बात, सातवां पद, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। पौलुस सब कहता है कि जो कार्य मुझे सौंपा गया था, पौलुस को सौंपा गया था कि मैं अन्य जातियों में वचन का प्रचार करूँ, लेकिन पतरस को चुना गया कि यहूदी में प्रचार कर। हालांकि पतरस ने भी हम पढ़ते हैं उसने 2-3 जगह प्रचार करा जहाँ अन्य जाति लोग थे, कर्नेलियस के घर में, बाकी और जगह। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें देखना जानने की आवश्यकता है कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर ने सौंपा पतरस को यहूदियों के लिए, या और शिष्यों को यहूदियों के लिए। अब मेरे जो टारगेट है वह है अन्य जाति लोग, जो किसी समय बाहर से निकाले हुए थे, अब वो प्रभु के राज्य में आकर उसके राज्य के सदस्य या उसके फर्जंद बन गए हैं। और सातवीं बात, क्योंकि 8वां पद, क्योंकि जिसने पतरस से खतना की वो में प्रेरिता का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने
मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवा। अब पौलुस यहाँ पर कहता है, साफ साफ कहता है कि मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, dear friend, I want to make it very clearly here that the same God of revelation, who called me also called Peter, so that I may preach the gospel among the Gentiles, and Peter might preach the gospel among the Judaic group or Jews. May God help us to understand His word very clearly. Today we'll stop here, and tomorrow we'll see from here onwards. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज भी सुसमाचार का प्रचार होता है प्रभु जी, और वे धन्य है जो इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उन्हें जीवन प्रदान करते, अनंत काल का जीवन, भक्ति का जीवन, विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन और आराधना का जीवन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हम भी आप में बढ़ते चले जाए, ताकि हमारे द्वारा आपकी महिमा हो सके। जहाँ जहाँ प्रभु आज आपका वचन की सेवा ही प्रभु खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस दानियल के पुस्तक के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने अपने दास के द्वारा लोगों से बातचीत करी। धन्यवाद देते प्रभु, आज जो कुछ लोगों ने सीखा उसमें बढ़ते चले जाए प्रभु। आज का वचन हमारे हृदय के अंदर घर कर जाए प्रभु, ऐसे फल उत्पन्न हो। हम चाहते प्रभु 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना हमारे जीवनों को अपने हाथों में लें, शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु जी, हर बीमारी से बचाएं, कोरोना वायरस की ताकत समाप्त हो जाए प्रभु जी, ताकि लोग आज़ादी के साथ रह सकें और आपकी महिमा कर सकें। हे प्रभु, अभी तक अपने संभाल, आगे भी संभाले, सहायता करें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे हम कुसवार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कुसों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की फाकत शिरकत हमें सर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु प्रभु है, प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ रहे, सुरक्षित रहिए, सावधानी से रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद।